Hello there. Today we are going to take the second chapter from the geography textbook, that is interior of the earth. Yes, this is very informative chapter for us. Now, see, before going to start the chapter, we have given some let's recall activity that we are going to see. So through that you can understand it in a better way. See, in the previous classes, you have been introduced to rocks type, volcanoes, and earthquake. Answer the following questions. On the basis of that, now see, अभी आपने पिछले साल में इवन उसमें पिछले साल में आपने रॉक्स के टाइप्स देखा है, वल्केनोज देखा है, अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज means whatever you learned till now in the geography part, so on the basis of that we have to answer these questions. Now see the first question. When earthquake occurs, what happens exactly? Yes, you know it very well. When the earthquake occurs, when the tension generates in the interior of the earth, so that earthquake occurs. Then what happens exactly? See, due to earthquake, what happens exactly? Loss of property as well as loss of life. So हमने देखा है कि जब भी कहीं पर अर्थक्वेक होता है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड हो जाती है और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग एनिमल्स भी मारे जाते हैं. सो दैट हैपन्स एग्जैक्टली व्हेन अर्थक्वेक अकर्स. If that very big earthquake is there, on and we know that on earth, for earthquake we use the Richter scale. How are igneous rocks formed? Now see, how are igneous rocks formed? The igneous rocks formed due to the eruption of volcanoes. Yes, you must be knowing this. What is a volcano? What is volcano? So you know that it is very well, and even different types of volcanoes are there, like Fisher type volcano, and again different types of volcanoes are there. Active volcanoes are there, and especially that volcanoes plates are there on the earth surface. So such kind of volcanoes mostly found on the plates. Which materials come out during a volcanic eruption? Which material comes out during the volcanic eruption? So magma and many other things are there that comes during the volcanic eruption. In which state of matter are these materials? अभी ये जो मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? सो नाउ सी दैट इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म. वो कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म्स में होता है. आर दीज मटेरियल्स कूल और हॉट एंड वाई? So now see that materials are hot when it comes in the surface of earth, so it becomes slowly cool. And why it is there? Because in the interior of the earth there is lots of temperature and different gases are there, so it becomes very hot. We know that in many volcanoes we see that those are active now. Because of their ash, some of the areas are covered with protection, and we are not allowed to go at such volcanoes. So see, now in details of this chapter we are going to understand. Now see what kind of things are given here. Now see, try this. Boil half a liter of milk. When the milk comes to a boil, switch off the gas. Keep a lid on the vessel.
अभी हमें यहाँ पर बताया गया है कि आधा लीटर दूध लेना है और उसे हमें बॉईल करने के लिए रखना है, और जब वो बॉईल हो जाता है, स्विच ऑफ द गैस, इसे वहाँ पर हमें क्या करना है, गैस को बंद करना है। आफ्टर दैट कीप अ लीड ऑन द वेसल, और वो जो बर्तन है उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक लीड रखना है। Then we have to observe. The later part of the experiment is very important. You have to use your observational skill and arrive at some conclusions. Now see, we have to add some we have to observe it very clearly, so you can understand it easily. After 10 minutes, remove the lid, take it टू अ साइड एंड लिट इट। अगर आप उसके बाद में वो लिड निकालते हो और उसे खड़ा रखते हो, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, व्हाट कैन यू सी ऑन द मिल्क, इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ मैटर ऑन द मिल्क, रिमूव दिस लेयर ऑफ मैटर, टेक नोट ऑफ द डिफरेंस in temperature of this manner and the milk and answer the following questions. Now see, वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें नीचे के क्वेश्चंस को आंसर करना है. Now see, what are the questions? The first question, when the milk was kept for boiling, in which state was it? अभी जब मिल्क बॉइलिंग के लिए रखा था तो वो कौन सी स्टेट में था? So it was in a solid form only. Then it was cool also. When the milk was boiling, what did you observe? When the milk was boiling, that steams were coming out, that we can easily understand. What did you observe? So we have observed that the steams were coming from the milk because of the temperature. What had accumulated over the lid of the vessel? अभी लीड के ऊपर क्या हुआ था, क्या अकुमुलेट हुआ था? सो लीड के ऊपर भाप आने की वजह से उसके ऊपर वो जो ड्यूज बनते हैं, मतलब पानी के बूंदे वहाँ पर आपको मिल सकती है. टेल वेदर द मैटर अकुमुलेट ऑन द मिल्क इज लिक्विड और सॉलिड. नो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड में ही था वो, नॉट इन सॉलिड. It was cooler or hotter than the milk below. अभी जो उसकी जो ऊपर की जो मलाई होती है वो ज़्यादा हॉट होती है या नीचे का दूध ज़्यादा हॉट होता है? तो मलाई ज़्यादा हॉट होती है, बाद में वो ठंडी होने की वजह से ऊपर की जो लेयर, उसके ऊपर की लेयर बन जाती है. देन उसके अंदर का मिल्क और ज़्यादा हॉट होता है, क्योंकि वो लेयर बनने की वजह से अंदर की जो भाप है वो बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए. On which other substance can similar experiments be carried out? अभी इसी तरह से और कौन से ऐसे substances है जिसके ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं? We can find out that answer. Just a minute. Now Now see, geographical explanation has been given to us. By reading the geographical explanation, definitely we are going to understand those all questions in a proper way. Before boiling, the milk was in the liquid state. अभी जब हमने उसे बॉयल करने के लिए रखा तो so it was there in the liquid form. After it comes to boil, a steam started coming out from it. उसमें से भाप बाहर निकलना शुरू हो गया था. After some time, a thick layer of cream develops over the milk. कुछ समय के बाद में होता क्या है, तो जो क्रीम बनती है उसे हम मलाई बोलते हैं, वो मिल्क के ऊपर बनती है, मिल्क के
ऊपरी हिस्से में। द टेम्परेचर ऑफ क्रीम इज़ लेसर दैन द मिल्क बिलो। यस, मैंने भी आपको वही बताया था, क्योंकि वो ऊपर की लेयर कैसी होती है, ऊपर की जो क्रीम होती है वो कैसी होती है, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, जिसके भी उसके नीचे का दूध ज़्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से भाप निकलना बंद हो जाता है उस लेयर की वजह से। Thus, it can be implied that the creamy layer cooled faster than the milk below it. मतलब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो क्रीमी लेयर है वो मिल्क से ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। Thus, it can be implied that the creamy layer cooled faster than the milk below it, which remained hot and in a liquid form. अभी वो कैसे था, गर्म तो था, बट कैसे था, कौन से फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। बट मिल्क उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में था, मतलब ज़्यादा हाई टेम्परेचर था मिल्क का। अ सिमिलर प्रोसेस अकर्ड व्हेन द अर्थ कूल्ड। अभी कूल्डेड सेम प्रोसेस होती है जब अर्थ कूल्ड होती है, ठंडी होती है तब। द साइंटिस्ट unanimously believe that the earth was formed out of the solar system itself. अभी अर्थ कैसे बनी गई है, तो सोलर सिस्टम में अपने आप बनी है। Initially, अर्थ was a gaseous hot balloon. ऐसे माना जाता है कि अर्थ कैसे था, तो गैसियस हॉट बलून की तरह था। It cooled down as it rotated around itself. जैसे कि हमें पता है अर्थ रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टुक प्लेस फ्रॉम द अटर सरफेस टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर। मतलब जो अर्थ का बाहर का एरिया है वहाँ से उसने ठंडा होना शुरू किया। जैसे कि मिल्क का ऊपरी हिस्सा ठंडा हुआ था, तो वैसे ही धीरे धीरे नीचे ठंडा होता जाएगा। तो ऐसे ही अर्थ ठंडी हुई है। और ऐसे माना जाता है कि अभी भी अर्थ के अंदर में ऐसे गैसियस फॉर्म्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, और सॉलिड फॉर्म्स में भी है, लिक्विड फॉर्म्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। As a result, the outer layer crust of the earth becomes cooler and solid, but we move from surface to the core. मतलब अगर हम अर्थ के ऊपर के हिस्से से नीचे अगर जाएंगे खुदाई करते करते, सो यहाँ पर देखो क्या होगा, वी मूव फ्रॉम द सरफेस टू कोर की तरफ। हीट इंक्रीजेस, टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जाएंगे ना वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। एंड एट सर्टन डेप्थ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सेमी लिक्विड। अभी एक सर्टन डेप्थ पर जाने के बाद में तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो कैसा है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इट इज़ सेमी लिक्विड लाइक अ क्रीम। Man has always been inquisitive about what lies in the interior of the earth. मतलब क्यूरियस बोल सकते हैं हम उसको। मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब इंसान को हमेशा से ही एक क्यूरियोसिटी रही है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है, मतलब ज़मीन के अंदर क्या क्या है वो जानना चाहता है। अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर हैज़ नॉट बीन पॉसिबल एज एट। डायरेक्ट तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है वो तो हम नहीं देख सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पॉसिबल होता है वैसे वैसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देन इंटीरियर ऑफ द अर्थ 8 through various methods the scientists have tried to estimate about the same, to infer about these, study the materials coming out of a volcanic eruption and the seismic waves is most important. अभी देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं, उन्होंने वो क्या करते हैं, तो जहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पर जाकर वो उसमें से कुछ चीज़ें निकालते हैं, थोड़े थोड़े कंपोनेंट में थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकालते हैं, और वो देखते हैं कि वहाँ पर उसमें से कौन से किस टाइप के चीज़ें निकल रही हैं। जैसे कि पत्थर किस तरह का है, जैसे कि हमने देखा था ना इग्निशियस रॉक्स, तो उस तरह से वो देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें इसमें से मिलते हैं।
कौन सी चीज़ों के कंपोनेंट मिलते हैं वो यहाँ पर उन्होंने उन सभी की वो क्या करते हैं तो स्टडी करते हैं। इवन अलॉन्ग विद दैट व्हाट काइंड ऑफ गैसेस आर देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो वो भी वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद में उसकी भी वो क्या करते हैं तो स्टडी करते हैं। सो साइंटिस्ट हैव मेजर रोल हेयर। नाउ आफ्टर दिस इंटीरियर through various methods the scientists have tried to estimate about the same, the infer about these study of the materials coming out of a volcanic eruption and the seismic waves is most important। अभी seismic waves मतलब क्या, जहाँ पर वो सेंटर है उससे डिफरेंट डायरेक्शंस में जो वेव्स जाती है तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैटर coming out of volcanic eruptions consist of hot magma, gases, steams, etc। देखिए जो वोल्केनिक इरप्शन के वक्त जो मैटर बाहर निकलता है तो उसमें क्या क्या होता है, मैग्मा, गैसेस, स्टीम्स। सो ये दो लाइंस आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर लेनी है। मैटर coming out of the volcanic eruptions consist hot magma, gases, steams, etc। When lava cools and solidifies, igneous rocks are found। यहाँ से ये भी अंडरलाइन करना है, igneous rocks कैसे बनते हैं ये भी पूछा जा सकता है in questions। When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed। मतलब जब वो लावा बाहर निकलता है और वो ठंडा होता है तो उस वक्त igneous रॉक्स बनते हैं। देन थ्रू द एस्टिमेट ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉज अंडरस्टूड। ये भी अंडरलाइन कर लो, किस माध्यम से इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझा जाता है, थ्रू द स्टडी ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, थ्रू द स्टडी ऑफ डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और टेम्परेचर। ये कौन सी चीज़ें होती है तो ये उसकी स्टडी करने के बाद में हमें समझ में आता है कि वो किस तरह का है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब वहाँ से हमें पता चल सकता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है, क्या क्या छुपा है, थोड़ा बहुत तो पता चल सकता है। क्योंकि हम ज़मीन के अंदर उतना जाकर प्रैक्टिकली तो नहीं देख सकते, बट ज़मीन से जो बाहर आ रहा है उसको तो हम स्टडी कर सकते हैं ना, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। सो इसीलिए बाहर जाकर देखते हैं, बाहर आने के बाद में उन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ सी आफ्टर दिस you might have observed that many scientists are there, they study and they have classified the different kinds of things and they have given only the names that fissure type of volcano, this type of volcano, they have given the such kind of names to the volcanoes। After this, now see, just a minute, For instance, when we go deep into a mine, we feel an increase in temperature। जो माइनिंग्स होती है ना अलग अलग जगह पर, कोल की माइनिंग होती है, अलग अलग चीज़ों की माइनिंग होती है, गोल्ड की भी होती है। तो जैसे जैसे हम माइनिंग में ज़मीन के नीचे जाते हैं, सो वी रियलाइज़ दैट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है वहाँ पर, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होते रहता है। क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होते रहता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेटली हॉट लावा अंदर है, मैग्मा है, तो इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। Oh my God, just a bit. Sorry for this, actually it could not happen, but it happened। Okay, before this it was not।
One more time I am going to read the paragraph which is given here so we can understand it in an easy way. Now, matter coming out of the volcanic eruptions consists of what magma, gases, streams, etc. When lava cools and solidifies, igneous rocks are formed. Those the estimates of the study of temperature, density, gravitational force, and the pressure, the interior of the earth was understood. For instance, when we go deep into a mine, we feel an increase in temperature. Similarly, the magma coming out of volcanoes from the earth's interior is hot. In the same manner, जो magma इंटीरियर ऑफ द अर्थ से होकर बाहर आता है तो वो भी कैसे होता है, हॉट होता है. Such estimations were made by the geologist. और ये किसने बताया है, तो जियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बताया. Several earthquakes occur in various places on the earth every year. बहुत सारे earthquake होते हैं हर साल में, बट अलग अलग places पर होते हैं. Then on the earth every year seismic waves are generated. अभी इसकी वजह से क्या आ जाता है, तो seismic waves are generated. These waves travel through the interior of the earth. ये underline करना है. Seismic waves are generated and these waves travel through the interior of the earth. Underline करना है उसे. The study of their direction and velocity helps us to estimate about the interior of the earth. अभी अगर उस सिस्मिक वेव्स की अगर डायरेक्शंस को हम स्टडी करते हैं, सो इट कैन हेल्प अस, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी की स्टडी करते हैं, इट कैन हेल्प्स अस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मैन हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू डिग डीप बोर होल्स इन द इंटीरियर टू नो मोर अबाउट द सेम. इवन इंसानों ने क्या किया है, तो बहुत सारे लंबे लंबे बड़े बड़े बोरवेल्स करने की कोशिश की है ज़मीन के ऊपर, ये जानने के लिए. होल्स मतलब बोर्स बोल सकते हैं, हमसे होल्स किए हैं ये जानने के लिए कि व्हाट इज़ देयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अबाउट द सेम. थिंक अबाउट इट. कैन वी डिग डीप फ्रॉम वन साइड ऑफ द अर्थ एंड कम आउट ऑफ द अदर साइड. क्या हम ऐसे इतना बड़ा गड्ढा खोद सकते हैं, मतलब बना सकते हैं कि एक साइड से खुदेंगे तो दूसरी साइड में हम बाहर निकलेंगे. इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल? आई थिंक नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. राइट योर इमेजिनेशन इन योर नोटबुक्स एंड डिस्कस इन क्लास. नोट, टीचर शुड लिसन टू द आइडियाज़ ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डायरेक्ट द टॉपिक टूवर्ड्स द अर्थ्स इंटीरियर. तो यहाँ पर सिर्फ आपको सोचना है. Now see, do you know the earth was formed approximately 4.6 billion years ago. Initially, the earth was in a gaseous state. It started cooling through the process of radiation. The earth then liquefied. With time, the outermost part of the earth cooled first and became solid. दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. मतलब जो ऊपरी हिस्सा जो ठंडा हुआ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्थ का सरफेस बोलते हैं. क्या बोलेंगे, अर्थ सरफेस बोलेंगे. देन अर्थ सरफेस, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. और उसे क्या बोला गया है, तो क्रस्ट बोलेंगे हम उसे. क्या बोलेंगे, अर्थ सरफेस बोल सकते हैं और क्रस्ट भी बोल सकते हैं. Even today, outer planets of the solar system are in the gaseous states. अभी आज भी अगर हम देखते हैं सोलर सिस्टम में, तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो गैसियस फॉर्म्स में हैं, गैसियस स्टेट्स में हैं. द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर. अभी अर्थ का इंटीरियर का किस तरह से कंपोजिशन है, मतलब किस तरह से बनी है. You can see the diagram here, so you will come to know, you can understand it. But here from this point we are going to start. The composition of the earth's interior. Try this. Carry out the following activity by dividing the students into two groups. Use the picture of the back cover of references. मतलब इस कवर का आप बैक कवर का आप रेफरेंस ले सकते हो.
टेक क्ले बॉल्स ऑफ 3 कलर्स रेड, येलो एंड ब्लू, मतलब 3 तरह के कलर्स के क्ले बॉय, जो कि हम क्ले का यूज़ करते हैं ना, वो क्ले बॉल्स हमें बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है उसे, अभी देखो यहाँ पर, मेक द रेड बॉल बिगर, रेड बॉल को हमें क्या करना है, बड़ा करना है। रोल आउट द येलो कलर बॉल विथ यू विल गेट अ फ्लैट रोटी लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप येलो बॉल को अगर रोल करोगे तो वो एक रोटी की तरह बन जाएगा। किसकी तरह बन जाएगा, तो रोटी की तरह, क्योंकि उसे हमने रोल आउट किया है, इसलिए वो हमें रोटी की तरह दिखेगा। देन द थर्ड वन एक्टिविटी बताई भी है यहाँ पर हमें किस तरह से करनी है। देन रोल आउट द येलो कलर बॉल, यू विल गेट अ फ्लैट रोटी लाइक अ स्ट्रक्चर। Place the red color ball inside the yellow one like you fill puran in the puran poli. Give it a shape of a spear. मतलब जो पहले बॉल का जो रेड बॉल है उसे पूरा हमें उससे कवर कर लेना है, उसको ढक लेना है, जैसे हम पूरन पोली बनाते हैं उस तरह से। नाउ रोल आउट द ब्लू बॉल टू फिल द येलो वन इन इन इट एज डन अर्लियर। मेक अ स्पेयर आउट ऑफ दिस टू, मतलब हमें क्या करना है, उसको येलो कलर से हमने किया था, वी हैव टू डू द सेम विद द ब्लू कलर ऑल्सो, मतलब वो ब्लू बॉल हमें उसका बनाना है, येलो को ब्लू में कन्वर्ट करना है, क्योंकि येलो ऊपर था तो उसके अभी ऊपर ब्लू आएगा तो वो हो जाएगा ब्लू। नाउ सी हियर, हाँ, शो द कॉन्टिनेंट्स इन येलो ऑन दिस पेयर। अभी हमें क्या करने हैं, तो उसे हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाने हैं, लाइक अ ग्लोब। नाउ योर ग्लोब मेड फ्रॉम क्ले इज रेडी। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा एक तरह का छोटा सा ग्लोब तैयार हो जाएगा। To see the interior of the earth, cut the sphere exactly in half. अभी अगर आपको अर्थ का इंटीरियर देखना है तो वो क्ले बॉल जो बना है उसे हमें क्या करना है, एग्जैक्टली कट करना है आधा आधा। To see the interior of the earth, cut the sphere exactly in half. You can see various layers of coolers inside like layers of the earth interior. Name these layers. अभी जैसे हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में है, इसी तरह से सेम उस बॉल में भी आपको दिखेंगे, तो उसको क्या करना है, आपको नेम्स देना है, और नेम्स किस तरह से देखते हैं यहाँ पर। While going from the earth's surface to its core, major changes occur in temperature and density. अभी मेजर चेंजेस टेम्परेचर और डेंसिटी में होते हैं। With respect to these two elements, the Earth's interior can be divided into following layers. अभी इसकी तरह से अगर हम समझते हैं तो अर्थ की जो लेयर्स है, इंटीरियर है, वो हम इस नीचे दिए गए कोर की तरफ उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। See the layers of the interior of the earth. The layers of the interior of the earth. So first क्रस्ट है, मेटल एंड कोर। तो अभी हम देखते हैं क्रस्ट में के कौन से पार्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, वो जो ज़मीन का हिस्सा है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक मतलब जहाँ पर पानी है, समंदर है, जैसे कि अरेबियन सी, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, सो ये होता है ओशनिक क्रस्ट। अभी उसके बाद में हम देखते हैं मेंटल। अभी उसके लिए है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। उसके बाद में कोर में क्या क्या है, आउटर कोर और इनर कोर, मतलब जो लेयर होती है उसकी वो आउटर कोर और इनर कोर हम उसे बोल सकते हैं। देन सी, नाउ हियर द डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जाम्स। इनर कोर वो रेड वाला बॉल दिख रहा है उस तरह से, उसकी आउटर कोर जो यहाँ पर दिख रही है वो, उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल एंड क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ये यहाँ पर बताया गया है। द क्रस्ट,
the crust. The uppermost layer of the earth's surface is in solid state and is called the crust. अभी वो कैसा है, सॉलिड स्टेट में है और इसीलिए बोला गया है वो क्रस्ट है, उसे क्रस्ट बोलते हैं. द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. अभी हर तरफ जो क्रस्ट की थिकनेस है वो सेम नहीं है. ऑन एन एवरेज इट इज़ 30 to 35 किलोमीटर्स. अगर हम देखते हैं ज़मीन का ऊपर का हिस्सा तो वो 30 से लेकर 35 किलोमीटर्स तक हो सकता है. और इवन ये कभी भी मतलब एक ही जगह पर से हर तरफ सेम भी नहीं हो सकता है. अभी ये हमें यहाँ पर बताया गया है प्रोसेस किस तरह से करनी है. जो हमें एक्टिविटी बताई थी वो किस तरह से करने हैं ये हमें यहाँ पर प्रोसेस बताई गई है. यू कैन गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली.